Good morning, dear students. Today we are going to discuss oxytocics in obstetrics. Okay, तो oxytocics क्या है? Oxytocics agents are drugs which promote uterine contractility, है ना? तो oxytocins वो ड्रग हैं जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं. ओके, देन सेकेंड डेफिनेशन सेज दैट oxytocics are the drugs of various chemical nature that have the power to excite contractions of the uterine muscles. Okay, means oxytocics are the drugs, they are having varying chemical nature, means their different chemical nature of oxytocin is available, but they have the power to excite, power to increase the contractions of the uterine muscles. वेरिंग केमिकल नेचर में जैसे कि हम बात करते हैं कि ऑक्सीटोसिन ये अमाइनो एसिड से बना होता है, ठीक है, एंड एर्गोट डेरिवेटिव्स ये जो है एल्कलॉइड्स होता है, और जो है तीसरा अगर प्रोस्टाग्लैंडिन की हम बात करें तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है वो लिपिड हार्मोन्स होते हैं. तो अब यहाँ पे जो ये है कि ये कह रहा है कि जो ऑक्सीटोकिक्स होते हैं इनके केमिकल नेचर्स वैरी करते हैं, बट दे हैव द power to stimulate uterine contractions. Okay, so it is also known as uterotonic drugs and uterine stimulants, है ना. ये uterotonic drugs भी हम इसको कहते हैं because it increase the tonicity of the uterus and it increase the uterine contraction. It is stimulated the contraction of uterine muscles, that's why it is called uterine stimulants. Okay, now classification of oxytocic drugs are, there are mainly three classification is there. Three drugs included, three types of drugs is included in oxytocics. First one is oxytocin, second one is ergot derivatives, third one is prostaglandins. So one by one we will discuss. Firstly we have discussed the oxytocin. Okay, now I would like to introduce the oxytocin. Okay, so introduction of oxytocin is D. Vignat and co-authors. Okay, D. Vignat and co-authors, they have discovered the structure of oxytocin and awarded with the Nobel Prize in 1950. Okay, so D. Vignat and co-authors, they have awarded in 1950 due to discovery of the structure of oxytocin, है ना. तो इन्होंने डिस्कवर्ड किया था ऑक्सीटोसिन के स्ट्रक्चर को. तो वो जो डिस्कवर्ड उन्होंने किया था तो उन्होंने ये बताया कि ऑक्सीटोसिन इज बायोकेमिकल नेचर, दिस इज द नॉन पेप्टाइड, मीन्स इट इज मेड अप ऑफ 9 amino acids. Okay, so next one is synthesis. Synthesis of oxytocin, synthesis of oxytocin occurs in paraventricular and supraoptic nucleus of the hypothalamus. Okay, so it synthesis of oxytocin occur in paraventricular nucleus and supraoptic nucleus of hypothalamus, and it is stored in posterior pituitary gland. So by image we can see the how it is synthesis occurs and how it comes to the posterior pituitary. So here there is a hypothalamus है, तो यहाँ पे क्या है कि ये पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियस है और दिस इज अ सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस. ओके, सो फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन इज हियर. ओके, अकर देयर इज अ पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियस एंड सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस. तो फॉर्मेशन इसका हो गया कहाँ पे, हाइपोथैलेमस में, in this nucleus, both nucleus, then through hypophyseal tract. Okay, through hypophyseal tract, then oxytocin comes to posterior pituitary, है ना. It is stored in the posterior pituitary. Posterior pituitary में इसका storage होता है. Then during parturition and suckling stimuli, means if pregnancy comes near to लेबर, मीन्स जैसे ही लेबर का, जैसे कि 37 वीक्स टू 42 वीक्स में टर्म जेस्टेशन होता है, उस दौरान क्या होता है, तो उस दौरान जो वुमेन है पार्चुरेशन पीरियड में जब पहुंचती है इन लेबर, तो उस कंडीशन में और मेनी फैक्टर्स आर देयर, दे स्टिमुलेट द यूट्राइन, दे स्टिमुलेट टू रिलीज द ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी. ड्यूरिंग सकलिंग ऑल्सो, इफ
बेबी जैसे पोस्टपार्टम पीरियड में बेबी सकल द ब्रेस्ट, देन एट दैट टाइम ऑक्सीटोसिन ऑल्सो रिलीजेस, है ना। तो अगर हम पार्चुरेशन की बात करें, ड्यूरिंग दैट टाइम व्हेन ऑक्सीटोसिन रिलीजेस देन इट इफेक्ट्स ऑन द प्रेग्नेंट यूट्रस, है ना। तो प्रेग्नेंट यूट्रस पे क्या करता है, इट कॉन्ट्रैक्ट द प्रेग्नेंट यूट्रस, ओके। एंड इन सेकेंड हैंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोइथिलियल सेल्स ऑफ द फीमेल ब्रेस्ट, ठीक है। तो सकलिंग स्टिमुलाई जब होती है तो फॉर द मिल्क इजेक्शन, है ना। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोइथिलियल सेल्स ऑफ द फीमेल ब्रेस्ट अकर्स फॉर द मिल्क इजेक्शन. Then there is this one is synthesis of what? Synthesis of oxytocin, okay. Now coming to the mechanism of actions, है ना. Mechanism of action, how it acts, okay. Then oxytocin when releases in the blood, है ना, जब blood में release होता है तो in the cell membrane there is a G-coupled protein receptors. G-coupled protein receptors receive the message from the oxytocin increased level in the blood, okay. जब ये G-coupled protein receptors मैसेज को रिसीव करती है, then from the cell membrane, okay, then from cell membrane there is phosphatidyl inositol activates, okay, releases, है ना, activate होता है, release होता है in the cytoplasm. Then by the help of phospholipase C, है ना, phospholipase C की हेल्प से फास्फोटाइडिल आइनोसिटॉल इट इज कन्वर्टेड इनटू आइनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट, है ना. ये फास्फोटाइडिल आइनोसिटॉल से कन्वर्ट हो जाता है आइनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट. तो अगर सेकेंड हैंड में हम बात करें कि जब ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ता है तो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन में एक गेट होता है, वो है वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल. वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ये क्या करता है, कैल्शियम के इन्फ्लक्स को बढ़ा देता है ना इनसाइड द सेल. तो कैल्शियम के इन्फ्लक्स को बढ़ाता है और यहाँ पे आइनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट क्या करता है, साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मैसेज देता है. तो साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, कैल्शियम रिलीज को बढ़ा देता है, ठीक है. जैसे ही कैल्शियम का लेवल बढ़ता है वैसे ही काल्मेड्यूलिन प्रोटीन्स जो होती है, ये एक तरह की प्रोटीन है, काल्मेड्यूलिन प्रोटीन एक तरह की प्रोटीन है. जब ये कैल्शियम का लेवल जब बढ़ता है, कैल्शियम का लेवल जब भी बढ़ता घटता है ना, अफेक्ट होता है, तो ये क्या करता है, ये मैसेज प्रोवाइड करता है. ये इंटरमीडिएट प्रोटीन की तरह काम करता है. ये मैसेज प्रोवाइड करता है टू वेरियस एंजाइम्स एंड आयंस, ओके. तो अब ये क्या है, काल्मेड्यूलिन प्रोटीन सेंसिटाइजेशन होता है तो ये काम करता है MLCK पे, मायोसिन लाइट चेन काइनेज, है ना. मायोसिन लाइट चेन काइनेज एक्टिवेशन करता है एंड बाय द हेल्प ऑफ एक्टिन एक्टिवेटेड मैग्नीशियम एटीपेज, है ना, एंजाइम. इस एंजाइम की हेल्प से एक्टिन फिलामेंट क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है. जब एक्टिन फिलामेंट एक्टिवेट हो जाएगा तो इसके बाद क्या होगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा. यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो किस तरह से होता है ये भी जानना जरूरी है. इट मेंटेन द पोलैरिटी ऑफ द यूट्रस, मीन्स जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है वो पोलैरिटी ऑफ यूट्रस को मेंटेन करता है. मीन्स इफ फंडल रीजन इज कॉन्ट्रैक्टेड इट एंड देन लोअर सेगमेंट वो क्या करता है, रिलैक्स करता है, क्योंकि पूरा होल यूट्रस कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है. दैट इज नेचुरल कॉन्ट्रैक्शन फिनोमेना, ओके. देन एंड अनदर, ये जैसे ही ऑक्सीटोसिन बढ़ता है तो उसकी वजह से क्या होता है, एक तो पोलैरिटी भी मेंटेन होती है और वो जो कॉन्ट्रैक्शन करता है पोलैरिटी मेंटेन करके करता है. और दूसरी चीज़ क्या करता है, इट ऑल्सो सिंथेसाइज द प्रोस्टाग्लैंडिन फ्रॉम द डेसिडुआ एंड एमनियन, है ना. तो एमनियन और डेसिडुआ से दोनों जगह से क्या करता है, ये सिंथेसिस करता है. किसका सिंथेसिस करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन का, ओके. तो अब हमने पढ़ लिया सिंथेसिस एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, है ना. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी हमने देख लिया. नाउ कमिंग टू द इंडिकेशंस, ओके. कमिंग टू द इंडिकेशंस, व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ द ऑक्सीटोसिन. तो फर्स्ट there is I have divided in 3 category, in the pregnancy, in the labor and the postpartum period, okay. तो इंडिकेशन की अगर हम बात करें, इट इंड्यूस द अबॉर्शन एंड लेबर, है ना. ये क्या करता है, इंड्यूस करता है. हम इसको यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग द इंडक्शन ऑफ द अबॉर्शन, मतलब टू इनिशिएट द अबॉर्शन एंड टू इनिशिएट द लेबर ऑल्सो, है ना. तो ये हम लेबर में भी और अबॉर्शन में भी लेबर को इंड्यूस करने के लिए, उसको इनिशिएट करने के लिए, अबॉर्शन को इनिशिएट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं.
लेकिन इसमें साथ के साथ हम कभी भी ऑक्सीटोसिन को इमीडिएटली हम यूज नहीं करते। हम जब भी इंड्यूस करते हैं तो प्रोस्टाग्लैंडिन का सहारा लेके करते हैं, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, सर्वाइकल डायलेटेशन कराता है ना। तो प्रोस्टाग्लैंडिन का यूज करने के बाद ही हम जो है मिजोप्रोस्टोल उसमें जनरली हम यूज करते हैं, उसके बाद ही हम ऑक्सीटोसिन का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन इंड्यूस करने में हम इसका यूज कर सकते हैं, इंडिकेशंस है जिसमें हम अबॉर्शन और लेबर में हम ऑक्सीटोसिन की यूज करते हैं। इवैक्यूएशन ऑफ द हाइडेटिफॉर्म मोल एंड वेसाइकुलर मोल, है ना, हाइडेटिफॉर्म को ही वेसाइकुलर मोल भी कहते हैं। तो हाइडेटिफॉर्म मोल जो है ये एक तरह का प्लेसेंटल एबनॉर्मल प्लेसेंटल प्रोलिफरेशन की वजह से हाइडेटिफॉर्म मोल होता है। इसमें क्या होता है कि इसके सिम्टम्स में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको एज अर्ली एज पॉसिबल हमें हाइडेटिफॉर्म मोल जैसे सिम्टोमेटिक होता है, हमें हाइडेटिफॉर्म मोल को जल्द से जल्द इवैक्यूएट करना होता है, जल्द से जल्द उसको यूट्रस से निकालना होता है, क्योंकि ब्लीडिंग बहुत सीवियर होती है, मदर शॉक में जा सकती है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं। देन ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट। ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट में क्या है कि हम इसमें क्या होता है कि जो फीटस है उसका हम टॉलरेंस लेवल देखते हैं, ठीक है, कंप्रोमाइज हम उसका देखते हैं कि फीटस कंप्रोमाइज हो सकता है कि नहीं, टू चेक द प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी लाइक इन प्रीक्लैम्सिया, है ना, इन अब्रप्शियो प्लेसेंटा। जैसे हाई रिस्क प्रेगनेंसी में ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट देते हैं, हम ऑक्सीटोसिन को उस अमाउंट में देके हम ये देखते हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं, उसमें हम देखते हैं कि फीटस कंप्रोमाइज हो रहा है कि नहीं, उसको डी एक्सेलरेशन हो रहा है कि नहीं, है ना। तो ये चीज़ प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी में हम देखते हैं, जिसमें लेट डी एक्सेलरेशन होता है, तो उसमें ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आता है। देन लेबर की बात करें तो लेबर में हम कब यूज करते हैं, ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर इन यूट्राइन इनर्शिया, है ना। ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर मीन्स क्या, टू, अब यहाँ पे इंडक्शन में क्या था, इनिशिएट कर रहे थे, अब यहाँ ऑगमेंटेशन में क्या है, हम इसको प्रोग्रेस कर रहे हैं, है ना। तो यूट्राइन इनर्शिया में क्या होता है, पुअर प्रोग्रेशन, पुअर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो पुअर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, कोई लेबर प्रोग्रेस नहीं हो पाएगा। तो उस कंडीशन में हमने क्या करना होता है कि ऑक्सीटोसिन दे के हम एक्सेलरेट करते हैं लेबर को, है ना, एक्सेलरेट करते हैं लेबर को, दैट इज कॉल्ड ऑगमेंटेशन, है ना। देन दूसरा है लेबर में हम प्रिवेंट करते हैं पीपीएच को। पीपीएच को प्रिवेंट करने के लिए हमने क्या करना है, 10 इंटरनेशनल यूनिट हम आईएम देते हैं, ठीक है। तो वो हम लेबर में ही दे देते हैं ड्यूरिंग आफ्टर डिलीवरी ऑफ एंटीरियर शोल्डर, है ना। तो हम पीपीएच को प्रिवेंट करने के लिए देते हैं। नेक्स्ट है पोस्टपार्टम पीरियड में। पोस्टपार्टम पीरियड में इंडिकेशन में हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ट्रीट द पीपीएच, है ना। जब पीपीएच होता है तो उस समय हम क्या करते हैं कि अभी तो हम प्रिवेंट करने के 10 इंटरनेशनल यूनिट दे रहे थे, लेकिन जब पीपीएच हो गया तो उस कंडीशन में हम 20 इंटरनेशनल यूनिट जो है हम किसमें, 1 लीटर सॉल्यूशन में NS या RL में हम क्या करते हैं, उसको हम इन्फ्यूज़न के रूप में देते हैं, और 10 इंटरनेशनल यूनिट हम IM दे देते हैं, तो उसमें हम ट्रीट करते हैं पीपीएच। उसके साथ साथ सेकेंड चॉइस मिजोप्रोस्टॉल भी होती है, टू इनिशिएट द मिल्क लेट डाउन इन ब्रेस्ट, है ना। और दूसरा हम क्या करते हैं पोस्टपार्टम पीरियड में, इस ऑक्सीटोसिन देते हैं जब ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट हो जाता है। ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट किस कंडीशन में होता है, उस कंडीशन में जब जो है ब्रेस्ट फीड मदर नहीं करा रही है, या फिर बेबी फीड नहीं कर पा रहा है, सकलिंग रिफ्लेक्स उसका पुअर है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि मिल्क इजेक्शन नहीं हो पाता। तो ऐसी कंडीशन में हम ऑक्सीटोसिन दे के मिल्क का इजेक्शन करवाते हैं, जिससे कि ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट को हम ट्रीट कर सकें, ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट को कम कर सकें। नेक्स्ट है कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन में भी हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज लेट प्रेगनेंसी, सेकेंड लेबर, थर्ड वन इज अदर कंडीशंस। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें इन द लेट प्रेगनेंसी, वी कैन दिस इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ग्रैंड मल्टीपैराज, मोर देन 4 अगर जिसको डिलीवरी हो चुकी है, उस कंडीशन में क्या है कि हम इसको नहीं देते हैं। क्यों, क्योंकि जो यूट्राइन वॉल है वो क्या होती है, वो वीक होने लगती है। जैसे जैसे डिलीवरी होती जाती है, जैसे जैसे उसका पैराज बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसकी जो यूट्राइन वॉल है वो वीक होती जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे यूट्राइन रप्चर के भी चांसेस हो सकते हैं। देन कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस जो है वो क्या है कि कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस में क्या होता है कि पेल्विस का जो डायमीटर है वो अप्रोप्रिएट नहीं होता है, ये कम होता है, मतलब फेवरेबल नहीं होता है नॉर्मल डिलीवरी के। तो उस कंडीशन में हम नहीं दे सकते, क्योंकि बेबी स्ट्रक कर सकता है, बेबी की डेथ हो सकती है अगर हम उसको नॉर्मल डिलीवरी कंडक्ट करेंगे, अगर हम ऑक्सीटोसिन दे रहे हैं तो। अगर हमें पता है कि हिस्ट्री ऑफ LSCS है एंड हिस्टेरोटमी है ना। हिस्ट्री ऑफ LSCS आपको पता ही है, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन हम तब करते हैं जब वायबिलिटी पीरियड कंप्लीट हो जाता है, ठीक है।
एक्सक्यूज मी, जब वायबिलिटी पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो उस कंडीशन में हम करते हैं LSCS 28 वीक के बाद जब हम करते हैं, अगर लोअर सेगमेंट पे अपर सेगमेंट किसी भी सेगमेंट पे अगर हमने लोअर सेगमेंट पे किया तो लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन है ना, अगर अपर सेगमेंट किया तो अपर सेगमेंट, उसको हम ट्रेडिशनल भी कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे LSCS जो है उसकी हिस्ट्री है, तो उस कंडीशन में हम नहीं करेंगे, नहीं देंगे। अगर हिस्टोटमी जो है इसमें भी हम यूट्राइन कंटेंट को इवैक्यूएट करते हैं, है ना, और उसमें लेकिन कौन से ट्राइमेस्टर में, सेकेंड ट्राइमेस्टर में। अगर 28 वीक्स के पहले हुआ, 26 वीक्स 24 वीक्स में हुआ है, तो उस कंडीशन में अगर यूट्रस को हमने जो है उस पर कट करके उसमें से कंटेंट निकाला तो दैट इज़ कॉल्ड हिस्टोटमी, है ना। तो इस कंडीशन में भी हम नहीं देते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूट्राइन वॉल क्या होती है, एक बार कट हो चुकी होती है, तो यूट्राइन वॉल अगर फिर से जुड़ी है तो वहाँ पे भी क्या होता है, रप्चर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यूट्राइन वॉल वीक हो चुकी होती है। देन कमिंग टू द माल प्रेजेंटेशन की बात करें तो माल प्रेजेंटेशन में क्या है, अगर फीटस का जो है लाई जो है वो सही नहीं है, लाइक ट्रांसवर्स लाई है, तो उस कंडीशन में हम इजी डिलीवरी नहीं करा सकते, तो उस कंडीशन में भी हम ऑक्सीटोसिन नहीं देंगे। नाउ कमिंग टू द लेबर, इन लेबर ऑल मेंशन्ड इन द प्रेगनेंसी, मतलब जो भी मेंशन है, ग्रैंड मल्टीपैरा, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, सिस्टोपेलासियस, सिस्टोटमी, मेल प्रेजेंटेशन, इन सब कंडीशंस में हम लेबर में भी अगर वेल नोन है, केसेस वेल नोन है, तो हम नहीं देंगे। देन ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में क्या होता है, इसमें यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन तो सही से तो हो रहा है, लेकिन क्या है, ड्यू टू मैकेनिकल प्रॉब्लम, मतलब कि वहाँ पे या तो फीटस का और जो पेल्विस का, उसका जो अप्रोप्रिएटली जो है दोनों का, जैसे उसका हेड और फीटस ब्रिम अप्रोप्रिएटली फिट नहीं बैठ पा रहे, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होता है, मान लीजिए पेल्विक का ब्रिम जो है वो छोटा है एज कम्पेयर टू फीटल हेड, तो उस कंडीशन में लेबर जो ऑब्स्ट्रक्ट कर जाएगा, वो आगे जो है वो नहीं बढ़ पाएगा। इनकोऑर्डिनेट यूट्राइन एक्शन, इनकोऑर्डिनेट यूट्राइन एक्शन में क्या होता है, यहाँ पे जो है वो रिदम मेंटेन नहीं कर पा रहा है ना, रिदम मेंटेन नहीं कर पाता है, और आगे जो है वो जो यूट्रस जो है वो सही से अप्रोप्रिएटली एक्शन नहीं कर पाता। लाइक अगर अपर सेगमेंट में क्या है कि कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए, लोअर सेगमेंट रिलैक्सेशन होना चाहिए, तो ये डिस्टर्ब हो जाता है, तो इस कंडीशन में भी क्या हो सकता है कि हम नहीं दे सकते हैं। तो वही है कि इसमें जो है क्या है कि जो सेगमेंट है इसमें प्रॉब्लम होती है, डिफेक्टिव जो है यहाँ पे सेगमेंट जो है डिफेक्टिव होता है, वहाँ पे रिसेप्टर सही से काम नहीं कर रहे होते हैं और सही से पोलैरिटी मेंटेन नहीं हो पाती है। देन फीटल डिस्ट्रेस की बात करें तो फीटल डिस्ट्रेस में क्या है कि अगर फीटस डिस्ट्रेस में जा रहा है, ऑलरेडी कंप्रोमाइज्ड है, तो उसको हम और कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी हम यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो जो सर्कुलेशन है वो थोड़ा सा क्या होता है, फीटस को थोड़ा सा हैम्पर्ड होता है ना, तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन तब भी होता है कि फीटस को ऑलरेडी अगर डिस्ट्रेस में है तो हम नहीं कर सकते। अगर उस चीज़ को टॉलरेट कर रहा है, फीटस कंप्रोमाइज़ है, फीटस कंप्रोमाइज़ नहीं है ना, वेल है ना, तो उस कंडीशन में जो है हम तो देंगे। लेकिन अगर फीटस का जो है हार्ट रेट सही नहीं चल रही है, तो उस कंडीशन में हम नहीं दे सकते। अदर कंडीशंस की बात करें तो कार्डियक डिजीज़ में क्या है, क्योंकि ये क्या करता है, जो है ऑक्सीटोसिन जो है ये कोरोनरी स्पाज्म कॉज कर सकता है ना, और चेस्ट पेन कॉज कर सकता है। तो ऑलरेडी कार्डियक डिजीज़ में कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो अगर जो है ये कोरोनरी वेसोस्पाज्म कॉज करेगा तो आगे कार्डियक प्रॉब्लम्स में कार्डियक जो है क्या है, उसकी कार्डियक डिजीज़ क्या हो सकती है, एक्सेजरेट कर सकती है, उसकी सिम्टम्स एक्सेजरेट कर सकते हैं, तो इसलिए हम नहीं दे सकते। हाइपोवोलेमिक स्टेट में क्या होता है, सिस्टेमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस से कॉज करता है, ऑलरेडी हाइपोवोलेमिया कराता है ये, तो ऑलरेडी जो है ये हाइपोटेंशन करा रहा है ना, तो हाइपोटेंशन भी कराता है, हाइपोवोलेमिक स्टेट भी कॉज कर सकता है ये, क्योंकि वाटर रिटेंशन करता है, वाटर इंटॉक्सिकेशन होने लगता है। तो हाइपोवोलेमिक स्टेट में हम नहीं कर सकते कि सिस्टेमिक रेजिस्टेंस वो कम करता है, ऑक्सीटोसिन ऑलरेडी हाइपोवोलेमिया है, तो वो जो है इस कंडीशन से भी मदर को प्रॉब्लम हो सकती है, हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकती है। तो दीज कंडीशंस आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड व्हाइल फॉर गिविंग द ऑक्सीटोसिन। नाउ कमिंग टू द रूट एंड डोज, है ना, रूट एंड डोज। अब इसमें क्या है, रूट की हम बात करें तो IV और IM रूट यूज ओनली, हम सिर्फ IV और IM ही यूज करते हैं, नेवर यूज ओरली। हम
ओरली हम क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि अमाइनो एसिड्स का बना होता है, और जो अमाइनो एसिड्स है ये क्या होती है इजीली, और इसका जो नेचर होता है केमिकल नेचर, वो केमिकल नेचर जो है इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है बाय गैस्ट्रिक जूस, है ना, डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसकी वजह से हम इसको नहीं दे सकते ओरली। नेवर यूज IV बोलस, IV बोलस हम इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि इसका एंटी डायरेटिक प्रॉपर्टी है, और इट कैन कॉज द हाइपोटेंशन एंड मोर रिटेंशन ऑफ वाटर, हाइपोटेंशन भी कॉज करता है और रिटेंशन ऑफ वाटर भी कॉज करता है एंटी डायरेटिक इफेक्ट की वजह से, इसलिए हम बोलस डोज कभी भी नहीं देंगे। नाउ व्हाट आर द प्रिपरेशन अवेलेबल फॉर द ऑक्सीटोसिन, है ना, तो प्रिपरेशन जो है सिंटोसिनोन के रूप में अवेलेबल है, तो 5 इंटरनेशनल यूनिट पर ml इन एम्पुल्स ऑफ 1 ml, है ना, 1 ml के एम्पुल में 5 इंटरनेशनल यूनिट पर ml होता है। दूसरा अवेलेबल है प्रिपरेशन पिटोसिन, पिटोसिन जो है वो 10 इंटरनेशनल यूनिट पर ml होता है, लेकिन जो एम्पुल अवेलेबल होता है वो 0.5 ml में अवेलेबल होता है, तो 0.5 ml में अवेलेबल है, इसका मतलब कि हम 0.5 ml एक एम्पुल में होता है, इसका मतलब 0.5 ml कंटेन्स 5 इंटरनेशनल यूनिट। ओके, देन सेंटोमेट्रिन, सेंटोमेट्रिन में क्या होता है, सिंटोसिनॉन 5 इंटरनेशनल यूनिट होता है, प्लस अर्गोमेट्रिन 0.5 मिलीग्राम होता है, ठीक है। देन नेजल सॉल्यूशंस में भी अवेलेबल होता है, 40 इंटरनेशनल यूनिट पर ml होता है। तो अगर हम इन्फ्यूज़न प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना, तो इन्फ्यूज़न प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कैलकुलेशन की नीड होती है, तो उस कैलकुलेशन को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। टू प्रिपेयर द इन्फ्यूज़न डिजॉल्व इन RL या NS में, है ना, अगर इन्फ्यूज़न आप डिजॉल्व कर रहे हो, लाइक हम इसको इंडक्शन जब हम करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इंडक्शन में हम इन्फ्यूज़न रेट को सेलेक्ट करके करते हैं, ठीक है, तो उसमें एक सेलेक्टेड होता है 1 to 2 मिली इंटरनेशनल पर यूनिट, तो मिली इंटरनेशनल यूनिट में जब आप कन्वर्ट करना जानोगे तभी तो आगे आप उसको इन्फ्यूज कर पाओगे। तो इसमें क्या है, 1 इंटरनेशनल यूनिट इक्वल टू 1000 मिली इंटरनेशनल यूनिट। ओके, तो 1 इंटरनेशनल यूनिट डिजॉल्व इन 500 ml, अगर हमने 1 इंटरनेशनल यूनिट 500 ml में अगर हमने डिजॉल्व करा, तो 1 इंटरनेशनल यूनिट 500 ml RL में भी हमने 1 इंटरनेशनल यूनिट 500 ml RL, तो उसमें कितना हो गया मिली इंटरनेशनल यूनिट 1000, ठीक है। तो 1000 डिवाइडेड बाई 500 इक्वल टू 2, तो हमको कितना मिल गया, 1 ml में कितना मिल गया, 2 मिली इंटरनेशनल यूनिट। ओके, तो इफ वी एडमिनिस्टर बाय इन्फ्यूजन सेट द 1 ml इक्वल टू 15 ड्रॉप, इट मीन्स 2 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर मिनट, है ना। तो 1 ml में आपको पता है 15 ड्रॉप्स होता है, और उसमें हम कितना मिली इंटरनेशनल यूनिट दे रहे हैं, 2 मिली इंटरनेशनल यूनिट। तो यहाँ पे लो डोज रेजिमेन है, तो लो डोज रेजिमेन में जैसे कि हमने स्टार्ट करा है, स्टार्ट हम करते हैं, स्टार्ट विद द 1 to 2 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर मिनट, है ना, कैन इंक्रीज बाय 1 to 2 मिली इंटरनेशनल यूनिट इन एवरी 20 to 30 मिनट्स, मतलब कि अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो मान लीजिए 2 मिली इंटरनेशनल यूनिट से हम पर मिनट स्टार्ट कर रहे हैं, तो 20 मिनट्स तक हम चलाएंगे, 20 मिनट्स के बाद तब हम जाके 2 मिली इंटरनेशनल यूनिट और इंक्रीज करेंगे, मीन्स हम टाइट्रेशन करते हैं। ये जो है स्पेशली ये जो टाइट्रेशन होता है ड्यूरिंग इंडक्शन ऑफ लेबर होता है, ठीक है, और जो है हम जब ऑगमेंटेशन होता है उसमें भी हम इसको करते हैं। तो अब यहाँ पे आप देखिए 1 ml इक्वल टू कितना हुआ, अगर हमने डिजॉल्व किया ये, है ना, 1 इंटरनेशनल 500 ml RL में, तो 1 ml इक्वल टू 2 मिली इंटरनेशनल यूनिट, तो 15 ड्रॉप्स पर मिनट हम दे रहे हैं। 2 ml इक्वल टू 4 मिली इंटरनेशनल यूनिट, उसको हम 30 ड्रॉप्स पर मिनट दे रहे हैं। 4 ml इक्वल टू 8 मिली इंटरनेशनल यूनिट, उसको हम 60 ड्रॉप्स पर मिनट दे रहे हैं। ओके, सो अगर हमने 2 इंटरनेशनल यूनिट इन 500 ml में हमने डिजॉल्व किया, तो उस समय कितना होगा, वहाँ पे 1000 था, अब यहाँ पे 2000 मिली इंटरनेशनल यूनिट हो जाएगा। तो 1 ml कितना कंटेन करेगा, 4 मिली इंटरनेशनल यूनिट। ओके, एंड 4 ml कितना कंटेन करेगा, 16 मिली इंटरनेशनल यूनिट, इट मीन्स 60 ड्रॉप्स पर मिनट हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो 60 ड्रॉप्स पर मिनट अगर हम दे रहे हैं, तो इट इज सफिशिएंट टू अचीव 3 कॉन्ट्रैक्शन इन 10 मिनट्स एंड इट लास्ट फॉर 40 to 45 सेकेंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, है ना। तो 3 कॉन्ट्रैक्शन 10 मिनट्स में आएगा और ये सफिशिएंट होता है ना, और 40 to 45 सेकेंड्स के लिए आता है, तो ये सफिशिएंट होता है फॉर एक्टिव फॉर द जो है लेबर, है ना, कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ये सफिशिएंट होता है इतना, जिससे कि लेबर कर सके, लेबर हो सके, लेबर सक्सेस हो सके, है ना। देन नेक्स्ट वन इज साइड इफेक्ट्स, है ना।
तो व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ द साइड इफेक्ट्स ऑफ द ऑक्सीटोसिन। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो पहला साइड इफेक्ट्स है हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ यूट्रस, है ना। हाइपर स्टिमुलेशन में अगर हम देखें तो हाइपर स्टिमुलेशन में क्या होता है, इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। इंटेंसिटी क्या होती है इंक्रीज, जब होती है तो मोर देन 60 सेकेंड्स के लिए ये क्या होता है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो हाइपर स्टिमुलेशन कॉज करेगा। दूसरा है टैकिसिस्टोल, मोर देन 6 कॉन्ट्रैक्शन इन 10 मिनट्स, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो मोर देन 6 कॉन्ट्रैक्शन इन 10 मिनट्स, इसमें फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। रप्चर ऑफ यूट्रस, है ना, रप्चर ऑफ यूट्रस होता है, प्रोलॉन्ग यूज अगर हम करेंगे, डोज बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं तो उसकी वजह से यूट्रस रप्चर हो सकता है। वाटर इंटॉक्सिकेशन है, डायरेटिक एंटी डायरेटिक इफेक्ट्स की वजह से वाटर रिटेंशन होता है, और अगर वाटर रिटेंशन हो गया बॉडी में तो वो क्या टॉक्सिन की तरह काम करेगा, है ना। फीटस डिस्ट्रेस हो सकता है, बहुत ज़्यादा अगर हम दे रहे हैं तो फीटस कंप्रोमाइज हो सकता है ना। तो ये भी एक तरह का साइड इफेक्ट है। नोज़िया वोमिटिंग भी इसका साइड इफेक्ट्स होता है। नाउ कमिंग टू द नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइल गिविंग द ऑक्सीटोसिन टू द पेशेंट, ओके। तो नॉट पेशेंट, टू द मदर। नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, असेस व्हाट वी विल असेस, इनटेक आउटपुट रेशियो, क्योंकि ये वाटर इंटॉक्सिकेशन कर रहा है तो हमें इनटेक आउटपुट रेशियो ज़रूरी है देखना कि कितना इनटेक ले रहा है पेशेंट, कितना आउटपुट आ रहा है, कहीं वाटर रिटेंशन तो नहीं हो रहा, ये हम फाइंड आउट करने के लिए इनटेक आउटपुट करेंगे। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है, फीटल हार्ट रेट हमें चेक करना है, क्योंकि फीटल कंप्रोमाइज हो सकता है, फीटल डिस्ट्रेस में जा सकता है फीटस, इसके लिए हमने देखना। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि टैक्टिस सिस्टोल भी हो सकता है, हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ यूट्रस हो सकता है, इसके लिए हमने देखना है। ब्लड प्रेशर, क्योंकि हाइपोटेंशन कॉज कर सकता है ना, पल्स बढ़ सकती है, रिस्पिरेशन बढ़ सकता है, तो ये हमें ब्लड प्रेशर, पल्स और रिस्पिरेशन हमें चेक करना है। देन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय आईवी इन्फेजन मॉनिटर ड्रॉप रेट। जब भी हम आईवी इन्फेजन देते हैं प्लीज़ 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 मॉनिटर द ड्रॉप रेट, क्योंकि अगर मॉनिटर नहीं होगा ड्रॉप रेट तो पेशेंट बहुत जल्दी है हाइपर स्टिमुलेशन में जा सकता है, और बेबी भी, फीटस भी कंप्रोमाइज़ हो सकता है। एंड मेक क्रैश कार्ट अवेलेबल, जैसे हाइपोटेंशन ये कॉज कर रहा है, तो हाइपोटेंशन कॉज कर रहा है तो हमें जो इमरजेंसी ड्रग्स हैं, है ना, तो जैसे डोपामाइन है, तो ऐसे ड्रग्स हमें अवेलेबल होना चाहिए, तो क्रैश कार्ट अवेलेबल होना चाहिए जिसमें इमरजेंसी ड्रग्स होते हैं, ठीक है। इवेलुएट करने के लिए अगर हम देखें तो लेंथ एंड ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, हमने जो फ्रीक्वेंसी है और ड्यूरेशन है कॉन्ट्रैक्शन की वो हमने इवेलुएट करना है, हमें फाइंड आउट करना है कितना कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कितने मिनट तक रह रहा है, कितने सेकेंड्स तक रह रहा है ना, कितनी बार आ रहा है 10 मिनट्स में, ये सारी चीज़ें हमने देखनी है। नोटिफाई द फिजिशियंस ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस लास्टिंग ओवर 1 मिनट और एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, है ना। फिजिशियंस को हमने तब बताना है जब कॉन्ट्रैक्शन जो है 1 मिनट से ज़्यादा अगर हमें मिला, ठीक है, 1 मिनट से ज़्यादा मोर देन 60 सेकेंड्स मिल रहा है, तो इसका मतलब कि हाइपर स्टिमुलेशन हो रहा है ना। और एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, या फिर आपको ऐसा है कि कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं मिल रहा है तो भी आप फिजिशियंस को नोटिफाई करेंगे। हम टीच क्या करेंगे, है ना, टीच हमें करेंगे टू रिपोर्ट इंक्रीज ब्लड लॉस। अगर ब्लड लॉस उसको हो रहा है जैसे पोस्टमार्टम पीरियड में, तो पीपीएच होने के चांसेस होते हैं, तो उस कंडीशन में हम उसको ऑक्सीटोसिन दे सकते हैं। तो हम ब्लड लॉस हो रहा है तो उसको भी हम रिपोर्ट करने के लिए बोलेंगे टू प्रिवेंट द पीपीएच। एब्डोमिनल क्रैम्प्स आ रहे हैं तो भी हम उसको बोलेंगे, क्योंकि क्रैम्प से करा सकता है, क्योंकि स्पाज्म करा सकता है ऑक्सीटोसिन। इंक्रीज टेम्परेचर, ब्लड का बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ सकता है ना, ड्यूरिंग हाइपरसिस्टोल, टैकिसिस्टोल या हाइपर स्टिमुलेशन। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें हम, या उसको फंडनेस भी लग रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है, वीकनेस लग रहा है, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो वो सारी चीज़ों को हमें रिपोर्ट करना है, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट द ऑक्सीटोसिन। थैंक यू सो मच।